everyone, welcome to the world of history. Myself Prashant Yadav. As you have seen in the thumbnail, today we will discuss the history of class 8th chapter 13 India's struggle for freedom. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष. And first, I want to say that please like and subscribe my YouTube channel so you can get more updates from here. The 19th century AD witnessed the rise and growth of nationalism in India. 19वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ. The social religious awakening spread of modern education, growth of press, development of means of communication and economic exploitation of our resources by the British led to an awareness about the true nature and role of the British in India. सामाजिक धार्मिक जागृति, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, वृद्धि, संचार के साधनों का विकास और अंग्रेजों द्वारा हमारे संसाधनों के आर्थिक शोषण ने भारत में अंग्रेजों की वास्तविक प्रकृति और भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा की. The policies of the British created discontent and unrest among the masses. An urgent need was felt to unite together and fight for the pride of the nation. The concept of nationalhood and national consciousness filled the minds of the people. The Indian people now strongly began to feel that India is for the Indians and it was to be ruled by the Indians, not any foreign power. राष्ट्र के गौरव के लिए एकजुट होकर लड़ने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई. तब राष्ट्र और राष्ट्रीयता चेतना की अवधारणाओं ने लोगों के मन को भर दिया. भारतीय लोग अब दृढ़ता से महसूस करने लगे कि भारत भारतीयों के लिए था या भारतीयों द्वारा शासित होना था, न किसी विदेशी शक्ति द्वारा. From AD 1885 to 1947, a prolonged courageous struggle was waged under the leadership of the Indian National Congress for Independence from the foreign rule. 1885 से 1947 तक विदेशी शासन ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नेतृत्व में एक लंबा और साहसी संघर्ष किया गया था. Factors responsible for the rise of nationalism. The important factors that led to rise and growth of nationalism were as follows. What are the factors? So here we will discuss about the factors. The factors: economic exploitation. The British, who initially came as traders, gradually established their monopoly over the economic resources of India. They turned India into a supplier of raw material for the industries. आर्थिक शोषण. ब्रिटिश जो शुरू में व्यापारी के रूप में आए थे, उन्होंने धीरे धीरे भारत के आर्थिक संसाधनों पर अपना एकाधिकार स्थापित किया. उन्होंने भारत को ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता के रूप में बदल दिया. The harsh economic policies of the British ultimately led to the decline of the indigenous handicrafts and dentalization. The excessive demands of the land revenue led the ruin of the peasantry and the labor classes. The policy of land settlement led to starvation of farmers. India was drained of India's wealth and economic resources. India witnessed several famines in quick succession during the British rule. अंग्रेजों की कठोर आर्थिक नीतियों ने अंततः स्वदेशी हस्तशिल्प और विमुद्रीकरण को कम किया. भू स्वराज के अत्यधिक मांगों ने किसान और मजदूर वर्गों को बर्बाद कर दिया. भूमि बंदोबस्त की नीति के कारण किसानों की भुखमरी हो गई. भारत के धन और आर्थिक संसाधनों की कमी हो गई. ब्रिटिश शासन के दौरान त्वरित उत्तराधिकारी ने भारत में कई अकाल देखे थे. नेक्स्ट फैक्टर इज पॉलिटिकल कॉज. पॉलिटिकल कॉज मीन्स राजनीतिक कारण. अब क्या क्या राजनीतिक कारण थे? तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था. द ब्रिटिश ग्रेजुअली एस्टेब्लिश्ड देयर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द होल ऑफ इंडिया. This resulted in agitation among the ruling princes and nawabs. There was also unrest among the middle and lower classes of people. Consequently, there were many peasant revolts, rebel uprising, military mutinies, and finally the revolt of 1857. अब राजनीतिक कारण में यह है कि अंग्रेज जो इंडिया में आए थे, अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया. इससे शासक, राजकुमारों और नवाबों के बीच तनातनी हो गई. लोगों के मध्य और निचले वर्गों में भी अशांति थी.
नतीजन कई किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, सैन्य विद्रोह और अंत में 1857 का विद्रोह। ये उस टाइम की फोटो है जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। The failure of revolt of 1857 made the people realize that only a united effort from the Indians would oust the British from India। जो 1857 में जो असफलता मिली, उसके विद्रोह ने लोगों को एहसास कराया कि भारतीय के एकजुट प्रयास से ही अंग्रेज भारत से बाहर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजियस एंड कल्चरल अवेकिंग। धार्मिक और सांस्कृतिक कारण, ये भी एक फैक्टर में आता है। द रिलीजियस कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ द 18th and 19th centuries aimed at reforming the society of social evils and revival of India rich trading heritage. The reformers of like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra, Vidyasagar, Swami Vivekanand, Swami Dayanand Saraswati etc. encouraged people। जागरण और धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन 18वीं और 19वीं शताब्दी का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों के समाज में सुधार करना और भारत की समृद्ध पारंपरिक विरासत को पुनर्जीवित करना था। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद, विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि जैसे सुधारक लोगों ने भारत को प्रोत्साहित किया। अब क्या हुआ, जो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद, विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद ऐसे जो लोग थे, उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। टू डू अवे विद those practice and customs that marred their intellectual development, they made the people aware to the rich and glorious past of India. They criticized the policies of the British in their writings and journals. The Indians soon realized that to regain their self-respect, it was necessary to throw the British out of India. The rising tide of nationalism found expression in religious and social reforms. तो अब क्या हुआ, उन प्रथाएं और रीति रिवाज को दूर करने के लिए जिन्होंने उनके बौद्धिक विकास को प्रभावित किया, उन्होंने टीआई को लोगों को भारत में समृद्ध और शानदार अतीत से अवगत कराया। उन्होंने अपने लेखन और पत्रिकाओं में अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की। भारतीयों ने जल्द ही महसूस किया कि अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंकना आवश्यक है। राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार के धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए अभिव्यक्ति पाई। नेक्स्ट फैक्टर इज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियां क्या थी? टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वास्ट कंट्री like the India, the British introduced uniform civil judiciary and revenue reform in the country. Uniformity in the administration was also necessary for in-depth exploitation of the natural and manpower resources of India. The uniformity in turn also resulted in unification of the people India. As they all groaned under the British, they unite against them. As India was unified and well held into a national during the 19th and 20th century, the nationalist sentiments developed easily among the people. भारत जैसे विशाल देश के प्रशासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने देश के समान नागरिक, न्यायिक और राजस्व सुधार पेश किए। भारत के प्राकृतिक जनशक्ति संसाधनों के गहन दोहन प्रशासन की एक रूपता भी आवश्यकता थी। यह एक रूपता आई टर्न जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को भारत का एकीकरण भी मिला। जैसे कि वे सभी अंग्रेजों के अधीन थे, उनके खिलाफ एकजुट हुए। इसलिए 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान भारत को एक राष्ट्र में वेल्डेन किया गया था। इसलिए लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना की आसानी से विकसित हुई। जो राष्ट्रवादी भावना थी वो आसानी से अब लोगों के अंदर विकसित होना चालू हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब जो डेवलपमेंट हुआ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, उस टाइम जो डेवलपमेंट हुआ, आधुनिक डाक प्रणाली, टेलीग्राफ और रेलवे लाइनों में भी विकास हुआ था उस टाइम। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ एंड रेलवे लाइन्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियन पीपल। People could now travel easily from one part of the country to another. They could intermingle, communicate and discuss their common desire for freedom. आधुनिक डाक प्रणाली, टेलीग्राफ और रेलवे लाइनों के विकास ने भी भारतीय लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने में मदद की। अब लोग देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से जा सकते थे।
वे आज़ादी के लिए अपनी सामान्य इच्छा के बारे में बातचीत, संवाद और चर्चा कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। अब क्या हुआ, प्रेस, अखबारों, न्यूज़पेपर का, इन सब का भी डेवलपमेंट होना चालू किया। With the development of press, numerous journals, newspapers and articles were written and published by the national leaders. These papers spread the ideas of unity, patriotism, nationalism and freedom. They openly criticized the policies of the government and thus exposed the true nature of the British. The important papers were the Amrita Bazar Patrika, the Kesari Maratha, the Indian Mirror, the Hindu, the Tribune. The press also enabled nationalist leaders living in remote regions of the country to exchange views with one another. तो क्या हुआ, जब प्रेस का विकास हुआ तो कई पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और लेखों की राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा लिखा और प्रकाशित किया गया। जो राष्ट्रवादी नेता थे, अब उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखना चालू की। इन पत्रों ने एकता, देशभक्ति और राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के विचारों को फैलाया। उन्होंने सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना की और इस तरह अंग्रेजों की वास्तविक स्वरूप को उजागर किया। महत्वपूर्ण पत्र अमृता बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, भारतीय दर्पण, हिंदू, ट्रिब्यून आदि थे। प्रेस ने देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले राष्ट्रवादी नेताओं को एक दूसरे के साथ विचार का आदान प्रदान करने में भी सक्षम किया। अब जब न्यूज़पेपर का मतलब प्रेस आगे बढ़ा तो इसने दूसरे देशों से भी विचार करने चालू किया, आदान प्रदान भी सक्षम बन सका। ये उस टाइम का अमृता बाजार पत्रिका का उस टाइम की इमेज है एक। Next point is spread of modern education. The British introduced English education in India as they wanted to prepare a class of Indians who would support them in their policies and also help the British at lower levels of administration. Macaulay remarked, "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and millions whom we govern." तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की क्योंकि वे भारतीयों को एक वर्ग तैयार करना चाहते थे। अब उन्होंने भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना चाहते थे जो उनकी नीतियों में उनका समर्थन करे। अब भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना चाहते थे जो उन्हीं की नीतियों में उनका समर्थन करे, प्रशासन के निचले स्तरों पर भी अंग्रेजों की मदद करें। मैकले ने टिप्पणी की। अब जो मैकले उस टाइम का मैकले रिमार्क दैट टाइम, जब मैकले था उन्होंने रिमार्क किया, हमें वर्तमान में एक वर्ग बनाने की एक पूरी कोशिश करनी चाहिए जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच व्याख्याकार हो सकते हैं जिन पे हम शासन करते हैं। तो इंडिया पे लोग शासन कर रहे थे, तो उस टाइम इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक मतलब उन लोगों को तैयार किया जो इन्हीं का समर्थन कर सके, उन्हीं लोग को एजुकेशन देना चालू किया। A class of person, Indians in blood and color, but English taste, in opinions, in morals and in intellect. व्यक्तियों का एक वर्ग, रक्त और रंग में भारतीय, लेकिन अंग्रेजी स्वाद, विचारों में, नैतिकता और बुद्धि में। But the spread of modern education had a reverse effect. It provided the Indians a national, secure and democratic outlook. The Indians began to appreciate the policies of democracy and equality. English education and proved useful in developing feeling of nationalism. The Indians took the inspiration from the American and French Revolution. The English language became a common language of communication for the people of different languages. However, the strategy boom managed on the British to a great extent. तो अंग्रेजों की नीतियाँ ये थी कि अब उन्होंने इंडियंस को एजुकेशन देना चालू किया था, लेकिन जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार एक असंतोषित कर दिया। इसने भारतीयों को एक राष्ट्र प्रदान किया, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण था। भारतीय लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों की सराहना करने लगे। अंग्रेजी शिक्षा राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में उपयोगी साबित हुई। भारतीयों ने अमेरिका, फ्रांसीसी और क्रांतियों से प्रेरणा ली। अंग्रेजी भाषा विभिन्न भाषाओं के लोगों के लिए संचार की एक भाषा बन गई। हालांकि इस रणनीति में काफ़ी हद तक अंग्रेजों पर हमला किया। अब इस टाइम क्या हुआ, जो इन्हीं का था, मतलब इस रणनीति जो इन्होंने ये रणनीति बनाई थी स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की, अब इन्हीं पर वो हमला बोली। Our next factor is development of vernacular language. Development of vernacular language. Modern education and knowledge
of English was available on a certain class of India. The majority of the Indians were unaware of the national spirit and that was flowing in India. The national leaders like Dadabhai Naoroji, Sir Syed Ahmad Khan, Bal Gangadhar Tilak, Justice Ranade, etc. तो अब क्या हुआ, जब वर्निकुलर भाषाओं का जब विकास हुआ तो अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा और ज्ञान भारतीयों के एक निश्चित वर्ग के लिए उपलब्ध था। मतलब सबके लिए वो उपलब्ध नहीं था, वो बस एक निश्चित वर्ग के लिए उपलब्ध था। भारत में बहने वाली राष्ट्रवादी भावना से अधिकांश भारतीय अनभिज्ञ थे। दादा भाई नौरोज और सैयद अहमद खान, बाल गंगाधर तिलक, जस्टिस रनाडे आदि जैसे राष्ट्र नेताओं के विकास की वकालत की। अब जो इन्होंने इनकी क्या की, विकास की वकालत की थी। अब जो वर्निकुलर लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ था, अब इनमें क्या हुआ, इनमें लेखकों ने, राइटर्स ने भी मदद की और जो दादा भाई नौरोज, सैयद अहमद खान, बाल गंगाधर तिलक, और मतलब इन्होंने मौखिक तरीके से और रिटन दोनों तरीके से भारत को नेशनलिज्म प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही मुख्य मदद की। हिंदी, उर्दू, ऑल लैंग्वेजेस में इन लोगों ने हेल्प की नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर इज द इमीडिएट फैक्टर। अब तत्काल कारण क्या थे? इमीडिएट फैक्टर मतलब तत्काल कारण। द रीजन ऑफ लॉर्ड लिटन spread wide discontent among the Indians and thus provided spark to the nationalist feeling. Lord Lytton policies that agitated to the Indians were as follow. मतलब अब क्या था, जो तत्काल कारण थे, लॉर्ड लिटन के शासन में भारतीयों व्यापक असंतोष फैलाया। जो लॉर्ड लिटन थे, इन्होंने भारतीयों में व्यापक असंतोष फैलाया। लोग संतोष नहीं थे, इनसे असंतोष थे। इसने राष्ट्रवादी भावनाओं को चिंगारी प्रदान की। लॉर्ड लिटन की नीतियां जो थी उनको हम अब नीतियां जो थी भारतीयों को उत्तेजित कर रही थी भारतीयों को। अब क्या हुआ, अब जो है द इंडियंस पॉलिसीज वर एज फॉलोज। हम क्या इंडियंस पॉलिसीज थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज थी, मतलब जो लॉर्ड लिटन ने मतलब कहा कि हम ऐसा करेंगे। तो रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम द ब्रिटिश गुड्स। अब ब्रिटिश वस्तुओं से आयात शुल्क हटाना। अब क्या किया इन्होंने, इंडियन तो मतलब वो टैक्स वक्त देते थे, लेकिन हम इन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश वस्तुओं में आयात शुल्क हटा दिया। अब जो अंग्रेजों द्वारा सामान आएगा उसमें से आयात शुल्क हटा दिया। द वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान वॉज फाइनेंस्ड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यूज। अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध को भारतीय राजस्व में विदेश पोषित किया गया था। A magnificent darbar was organized by the Lord Lytton in AD to proclaim assumption of imperial title by Queen Victoria. This happened at the time when India was suffering from a terrible famine. A huge amount of money was spent in this event. महारानी विक्टोरिया जो थी, तब शाही खिताब की घोषणा करने के लिए 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा एक शानदार दरबार का आयोजन किया गया था। ऐसे समय में हुआ था जब भारत एक भयानक अकाल से पीड़ित था। भारत अकाल से उस टाइम पीड़ित था और इन लोगों ने क्या किया, एक शानदार आयोजन किया। आयोजन में बड़ी राशि खर्च हुई। आयोजन में लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंड। इस आयोजन में एक बड़ी राशि खर्च हुई। ये उस टाइम दिल्ली दरबार का वो है जहाँ भारत वायसराय जो है वो दाईं ओर बैठा हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो भारत वायसराय था वो बैठा हुआ है। ये उस टाइम की इमेज है। The Vernacular Press Act of 1878 imposed restrictions on newspaper and journals published in Indian languages. अब क्या हुआ, वर्निकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया। भारतीयों के ऊपर वर्निकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया। भारतीय भाषाओं से प्रकाशित समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर रोक लगा दिए गए। जो न्यूज़पेपर थे उन पे भी अब भारतीयों द्वारा जो बनाए जाते थे उन पे भी अब रोक लग गए। द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 फॉरबिड इंडियंस फ्रॉम कैरिंग आर्म्स। अब जो शस्त्र अधिनियम के भारतीयों को हथियार ले जाने से भी मना कर दिया गया। अब जो शस्त्र थे, मतलब कोई भी गन या फिर कोई वेपन नहीं ले जा सकता अगर इंडियन है तो। भारतीयों को हथियार ले जाने से मना कर दिया गया उस टाइम। So thank you for watching my video. This is my first video. So all of you who are watching the video, please like and subscribe my channel so you can get more updates from here. And this is the first part of this chapter. You will get the second part soon. Thank you all of you. Please like and subscribe my channel.